Hello everyone, welcome to CMI's Digital Classrooms. Today we are going to learn about the next topic of your chapter, which is like and unlike decimals. Okay, so till now we have learned about the like and unlike fractions. So here it is like and unlike decimals. Okay, so what happens in like and unlike decimal fractions was as we have learned that in like fractions means the fractions whoever denominator are same. Okay, for example. 3 divided by 7, 5 divided by 7. So here this denominator also same, this denominator also same. So these two fractions are in like fractions. Okay, and if we are talking about unlike fractions, then suppose 2 divided by 5, then 3 divided by 7. So here denominators are different. So these are not in like fractions; these are in unlike fractions. Okay. So in that, like that, in decimals also, the numbers, decimal numbers which have same denominators are called like fractions, and different denominators are called unlike fractions. So same denominator and different denominator means what? It doesn't mean that the same number. It means same count of number. For example, I am saying 4 decimal 5, 78 decimal 2, okay, 382 decimal 9. So here after decimal we have only one digit. Here also we have one digit. Here also we have one digit. So these all numbers will be in like decimals. Okay, सारे like decimals में हैं. क्यों हैं? क्योंकि decimal के बाद इसमें भी एक digit है, इसमें भी एक digit है, इसमें भी एक digit है. क्यों? क्योंकि आप इसको अगर decimal को break करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? 445 divided by 10 हो जाएगा. ठीक है? ये क्या हो जाएगा? 782 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? 3829 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम. सो दैट इज हाउ दीज ऑल आर इन लाइक फ्रैक्शंस और लाइक डेसिमल्स. ओके, सो दीज आर इन लाइक डेसिमल्स. समझ गए? यहाँ पे नंबर मैटर नहीं करता है कि यहाँ 5 है या 2 है या 9 है, बट डेसिमल के बाद एक डिजिट रहेगा तो सारा लाइक में होगा. ठीक है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ अनलाइक डेसिमल्स, सो व्हाट हैपेंस इन अनलाइक डेसिमल्स? अनलाइक डेसिमल्स में जो डेसिमल्स है उसके बाद जो डिजिट्स रहते हैं, सो द नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी मोर और वेरी. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग 5 decimal 2, then 78 decimal 32, then I am saying 78 decimal 498. So here you can see, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है. तो ये सारे अलग अलग नंबर्स है. इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में सारे अलग अलग नंबर्स हो जाएंगे. So this is why these all numbers are not in like decimals. तो ये सारे like decimals में नहीं होंगे. तो these all are in unlike decimals. Why? Because there, if you convert this, their denominators will not be same. If you remove the decimals here, it will be divided by 10. If you remove decimal here, it will be divided by 100. If you remove this decimal, it will be divided by 1000. So this is why these all numbers are in unlike decimals. So this is the difference between like and unlike decimals. After decimals, if count of number are same, like. If count of number are varying, unlike. Okay. In fractions chapter also we have learned, suppose some numbers are in not like fractions. So first what we used to do? First we convert unlike fractions into like. सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट करते थे. उसके बाद उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे. So here also first we will check how we can convert if any decimal is in unlike and how we can convert that into like decimal. So this topic will you will able to know that how we can convert unlike decimal into like one. अगर कोई decimal unlike में है तो हम लोग उसको like में कैसे convert कर सकते हैं? ये बहुत ही easy है प्रोसेस. हम लोग क्या कहते हैं, मान लेते हैं एक like और दो unlike fractions हम लोग लेते हैं. मान लो यहाँ पे है 4 decimal 7 और यहाँ पे है
8.43 ये दो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अब ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को अगर हम लाइक में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल और यहाँ पे 8 डिजिट है। तो सबसे पहला चीज यही है कि अगर हम इसको लाइक बनाना चाहेंगे तो हमको यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए होगा, ठीक है। तो उसका एक रूल्स है कि डेसिमल के बाद मींस जो भी डिजिट है उसके बाद अगर आप कोई भी जीरो ऐड करते हो तो वो इक्विवेलेंट नंबर हो जाता है। इसका मतलब हम लोग जो है 4.7 को 4.70 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर जरूरत पड़े 700 700 इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब इसका एक्सट्रीम राइट में जो भी डिजिट है उसके आगे हम लोग जीरो ऐड कर सकते हैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नंबर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, ये जो 4.7 है इसको हम लोग लिखेंगे 4.70। तो अब ये जो है इसका लाइन में हो गया 8.43, ठीक है। तो अब जो है ये दोनों लाइन में आ गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं these two numbers are in like decimal. So very simple step you have to keep in mind कि after decimal whatever the digit is, suppose यहाँ पे और एक नंबर है जो है 43.99224, ओके। अब इसको आपको लाइक डेसिमल्स में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें और एक जीरो ऐड करेंगे और इसमें और 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा और इसमें एक जीरो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हमको यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए। तो ये हो जाएगा 4.700, ये हो जाएगा 8.430 और ये हम लोग का है 43.924। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल अगर लाइक में है तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी सिंपली, जस्ट एडिंग जीरो राइट मोस्ट टू द रिक्वायर्ड डिजिट्स और रिक्वायर्ड गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया हुआ है उसका राइट मोस्ट में हम लोग जितना मैक्सिमम में है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो फ्रैक्शंस है डेसिमल है उसमें जितने डिजिट्स है उतने डिजिट्स हम लोग को सारे डेसिमल में बनाने हैं, ये ध्यान में रखना है। और भी हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं, मान लेते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें अनलाइक में है और उसको लाइक में करना है। मान लो यहाँ पे 47.9824.45 then 9.862। यहाँ पे ये सारे नंबर्स हमने लिया है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा जो भी रिक्वायर्ड नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ये नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4.900, क्योंकि 3 डिजिट बनाने हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं 824.450, इसको क्या लिख सकते हैं 9.862। तो इस तरह से हम लोग ये जो भी नंबर दिए हुए हैं ये सारे नंबर्स को लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक डेसिमल्स में। सो दिस इज द प्रोसेस how we can convert unlike decimals into like decimals, okay। Now we will see how can we compare if 2 decimal numbers are there। कोई भी 2 और 3 अगर डेसिमल्स नंबर्स होते हैं तो how can we compare that which decimal number is greater or which decimal number is smaller। So very simply first thing which we will see is the digits before the decimals। मतलब कोई अगर नंबर है जैसे 482, ओके 482.25 है और एक है 793.28। तो इस केस में हम लोग सिंपली देख रहे हैं डेसिमल से पहले जो भी नंबर्स है ये इसमें जो भी बड़ा है वही बड़ा नंबर होगा, वही ग्रेटर नंबर होगा। वेरी सिंपली कि यहाँ पे ये 793 है और ये 482 है, सो डेफिनेटली ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये छोटा हो जाएगा, ये 700 है ये 400 है। उसी तरह से मान लेते हैं हम लोग का है 875.27 और एक नंबर है 872.45। तो यहाँ पे भी वेरी सिंपल है कि हम लोग इधर से देखते जाते हैं जो भी नंबर ग्रेटर है ये फर्स्ट प्लेसेस का नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे लेफ्ट मोस्ट नंबर जो होता है वो, तो यहाँ पे वो सेम है दोनों का। तो हम लोग राइट मोस्ट में जाते हैं, तो राइट मोस्ट में भी हम लोग का सेम है, तो ये हम लोग राइट मोस्ट में जाते हैं। तो
नंबर जो है डेसिमल से पहले का जो डिजिट्स है वो अलग है, बट मान लेते हैं कि डेसिमल से पहले जो भी डिजिट्स है वो सेम है और डेसिमल के बाद के नंबर्स अलग है, तो कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे? चलो उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 21.23 और एक नंबर लेते हैं 21.47। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे? इस केस में सबसे पहले ये फर्स्ट जो नंबर है आफ्टर डेसिमल के बाद जो नंबर है वो हम लोग पहले देखेंगे कौन सा बड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है और यहाँ पे 4 है, सो 4 इज ग्रेटर। यहाँ पे दोनों इक्वल है तो इसीलिए हम लोग को डेसिमल नंबर्स देखना पड़ रहा है। सो डेसिमल्स में जो फर्स्ट प्लेसेस है इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो ये ज्यादा है डेफिनेटली, सो दिस नंबर विल बी ग्रेटर। बट इन केस सपोज these two numbers are same, then what it will be? So once more example you can take 71.25 and 71.56। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, this is 2 and this is 5, so definitely 5 is more than 2, so this one will be greater. Okay, take one more example as like 761.32 और 761.35। सो इस केस में यहां तक सारे डिजिट्स जो है सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, 5 ग्रेटर है 2 से, राइट? सो डेफिनेटली ये नंबर जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। तो वेरी सिंपली फर्स्ट वी विल चेक दिस नंबर एंड देन वी विल चेक द नेक्स्ट नंबर। ओके, so this is how you can compare any two decimal numbers. Okay, for example, two decimal numbers are there. One more type of examples we will check. For example, one number is there 47.9 और एक नंबर है 47.43. Now you can tell me which one will be greater. Here and like you can see 47 is here, 47 is here. So this is 9 and this is 43. So you may think that because this is 9 and this is 43, so 43 will be more than 9. But not. Why? Because here this is not in like fraction. So if you convert this in like, then it will be 47.90 and this will become 47.43. So 43. So which one will be greater? Definitely 90 will be greater. So इस केस में ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो हम लोग हमारे एक्सरसाइज में और कुछ देखेंगे जो भी है, ठीक है? तो ये है हम लोग का कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कंपैरिजन में, मान लो कुछ डेसिमल नंबर दिया हुआ रहेगा और उसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब तक आप नहीं जानोगे ये कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर, तब तक ये करना पॉसिबल है, क्योंकि अरेंज करने के लिए आपको पहले पता करना होगा कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है। उसके हिसाब से आप अगर बोला जाता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर, तभी आप उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिलेटेड टू कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर है। बोला जा रहा है राइट दिस डेसिमल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा नंबर जो है उसको पहले लिखना है और सबसे बड़ा नंबर और सबसे बड़ा नंबर लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम लोग जो है बिफोर डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 444 है, यहाँ पे ओनली 4 है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 4444 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 40 है। तो सबसे कम नंबर यहाँ पे जो है ये, ठीक है? तो अगर इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो तो सबसे पहले ये आएगा 0.4444, ओके? उसके बाद क्या आएगा? 4 है उसके बाद, राइट? तो 4.444। उसके बाद क्या आएगा? 40 आएगा, तो 40.44। उसके बाद क्या आएगा? 44 आएगा, तो 44.44।
उसके बाद क्या आएगा 44 के बाद 444, तो यहाँ पे 444 डेसिमल 4। उसके बाद क्या आएगा 4444, so 4444। Very easily like this you can arrange these all number in ascending order. If in case of ascending order, if it is asking to write these number in descending order, then first you have to write the bigger number, biggest one, then the smaller like just opposite from the opposite side you have to write. तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे। तो this is how you can do the rest of all questions of this exercise by yourself. Okay. The next topic which we have is addition and subtractions of decimals. So addition and subtraction of decimal is also like the normal addition and subtraction only, but the thing only you have to keep in mind the placing the digits as per the decimals number. मतलब डेसिमल नंबर जो है वो लाइन में आपका होने चाहिए, और या तो आप बोल सकते हो कि सारे डेसिमल नंबर को ऐड करने से पहले आप लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना है आपको, उसके बाद ऐड करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स मान लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिया जाता है कि आपको ऐड करना है, ऐड सपोज 65.251, then 32.72, then 4.9, okay, then 22.64. So these are the numbers which we want to add. यहाँ पे एक नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है। ठीक है, तो अब हमें जो नंबर्स लिखने हैं इस तरह से लिखने हैं कि जो डेसिमल से वो एक लाइन में आ जाए। ठीक है, तो 65.251 को पहले लिखते हैं, 65.251। उसके बाद हम लोग का है 32.72, तो यहाँ पे 32.72, यहाँ पे कुछ नहीं है, अब 0 दे दो। ठीक है, उसके बाद 4.9 है, तो 4 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। 4 डेसिमल विल बी ऑलवेज इन द प्लेस ऑफ डेसिमल ओनली है 9, तो आप यहाँ पे 0 दे दो बिफोर एंड यहाँ पे 2 0 दे दो। ठीक है, उसके बाद 22.64, तो 22.64 यहाँ पे डिजिट नहीं 0 दे दो। अब जो है हमें इसको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, 1 5 2 7 7 4 11 1 carry 7 3 10 19 19 6 15 5 5 1 carry. Okay, so 1 carry will be there, so 6 plus 2 8 8 plus 4 8 plus 2 is 10 10 plus 4 is 14 4 1 carry, so 7 7 plus 3 is 10 10 plus 2 is 12. So यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, यहाँ पे 25 हो रहा है, 3 7 plus 3 10 10 plus 9 is 19 19 plus 25 हो रहा है, 2 कैरी किया है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। So here it will be 5 and यहाँ पे 1 ही कैरी आएगा शायद, 5 plus 2 7 7 plus 2 9 9 plus 4 is 13 13 14 15 15 is 5 1 carry 7 7 8 9 10 10 to 12, so 125, and decimal we will place here on. Okay, so 125 decimal 511, so this will be the required sum. Okay, this is very simply, this is how you can add. Suppose now we are taking an example of subtraction. Now we will subtract two decimal numbers. Okay, so if we want to subtract, suppose we are taking examples of subtraction is 61.689, and one more number we are taking 89.02. So this much you have to subtract from this. Okay, so first we will write definitely 89.02, और यहाँ पे हम लोग का है 61.689, so यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 plus 1 is 10. ओके, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको 10 लिए थे तो दिस विल बी 1, सो देन अगेन 10 2, ओके, सो नो दिस विल बी 11 ना, 3, ओके, now this will be also 6 7 8 9, so 3,
This will also be 3. Decimal will be here. Okay, now this one will be 8, 1, 7, right? 7. This will be 8 to 7. So 7 and 6, 7, 8, 2. So 27 decimal 331. 27 decimal 331. So this is how you can do the subtraction of 8 decimal numbers also. So addition and subtraction is very easy. Just first you have to convert the given two numbers in like fractions and you have to do the addition or subtractions. Okay. So now your homework is 7.2. So exercise 7.2 you have to do. The 7.3 you can discuss in classwork or you can do in classwork also. 7.2 is related. 7.3 is related to the addition and subtraction. That's all. Thank you and have a good time. Take care. Bye.